Hello dear students, today we are going to study partition values, quartile, decile and percentile. The value that divides the series into more than two parts is called partition value. Broadly, the partition values are estimated as quartile, decile and percentile. First we will see quartile. If a statistical series is divided into four equal parts, the end value of each part is called quartile. It is written as Q. The first quartile, denoted by Q1, is also known as lower quartile. The second quartile, Q2, is also same as the median of the series. And the third quartile, denoted by Q3, is also called upper quartile. Look at the graph or the bar graph here. Lower extreme minimum, then 25% Q1, again 25% Q2, which is the median. Median is the divider, half left side, half right side, lower side half, upper side half. Then next 25% denotes Q3. In this way, Q3 has 25% plus 25% plus 25% means 75% at the lower side and upper side remaining 25%. Here is a question, why not Q4? Q4 के बाद कोई एंड वैल्यू नहीं बचेगी, डिवीज़न या पार्टीशन हम शो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग Q4 नहीं लिखते हैं. तो ये क्वार्टाइल है, किसी भी सीरीज को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने को हम क्वार्टाइल कहते हैं. वैसे भी आप जानते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स जानते हैं, क्वाड्रा प्रीफिक्स है जिसका मीनिंग 4 होता है, तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं. इसी बात को हम फिर से समझते हैं या दोहरा लेते हैं. द फर्स्ट क्वार्टाइल डिनोटेड बाय Q1 और लोअर क्वार्टाइल हैज़ 25% ऑफ द आइटम्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो इट and 75% of the items above it. This is Q1. Now come to the Q2. The second quartile denoted by Q2, actually this is median, known as median, has 50% of items below it and 50% of the items above it. And the third quartile denoted by Q3, and another name is upper quartile, has 75% of the items below it and 25% of items above it. क्लियर हुआ? इसे आप एक बार और ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और न समझ में आए तो पूछिए कि पार्टीशन वैल्यूज क्या होती हैं. पार्टीशन वैल्यूज आर द वैल्यूज ऑफ द सीरीज विच डिवाइड्स द डेटा into a number of equal parts. ये क्या क्या हो सकते हैं? There may be median, quartiles, deciles, percentiles, etc. are the important partition values. हैं कि ये क्या होते हैं? जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, quartiles divides the series into four equal parts. For any series, there are three quartiles denoted by Q1, Q2 and Q3. Q1 is known as the first lower quartile covering 25% items. The second quartile Q2 is same as the median of the series. Q3 is called the third or upper quartile covering 75% of the items. Deciles divides the series into 10 equal parts. आप जानते हैं डेसी का मतलब 10 होता है. For any series there are 9 deciles denoted by D1, D2, D3. These are called
as first decile, second decile, third decile and so on. Thirdly, we have percentile. Percentile divides the series into 100 equal parts. Cent means 100. For any series, there are 99 percentile denoted by P1, P2, P3 and so on up to P99. Quartile divides into 4 equal parts. 3 quartiles are there. Q1 first or lower quartiles 25%, Q2 second or middle quartile which is known as median value 50%. Thirdly, Q3 third or upper quartiles having 75%. Deciles divides into 10 equal parts. 9 deciles are there, D1, D2, D3 and so on up to D9. Also D0 minimum value, D5 means बीच की वैल्यू मीडियन विच इज इक्वल टू Q2 एंड D10 मैक्सिमम वैल्यू. परसेंटाइल डिवाइड्स इनटू 100 इक्वल पार्ट्स. 99 परसेंटाइल्स आर देयर P1 से लेकर P99. P0 मिनिमम वैल्यू है और P100 मैक्सिमम वैल्यू है. P50 मिडिल या मीडियन वैल्यू है जिसको हम Q2 भी बोलते हैं और D5 भी बोलते हैं. ये फॉर्मूला जो हम बात कर रहे हैं ये इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज की बात कर रहे हैं. आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए. हम जब भी मीन, मोड, मीडियन या इस तरह से पार्टीशन वैल्यू की बात करते हैं तो हमारे पास 3 प्रकार की सीरीज होती हैं. इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज. तो फॉर्मूले भी इसी के आधार पर होते हैं. बहुत से फॉर्मूले कॉमन होते हैं या थोड़ा सा उसमें चेंज होता है. तो उसे बहुत सिंपली लीजिए कि इंडिविजुअल सीरीज है या डिस्क्रीट सीरीज है या कंटिन्यूअस सीरीज है, उसी के अनुसार उनके फॉर्मूले होते हैं. अभी जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वो हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के लिए. तो Q1 यानी फर्स्ट क्वार्टाइल का होगा हमारे पास साइज ऑफ n+1 अपॉन 4th आइटम. 4 इसलिए कि अपॉन में 4 इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वार्टाइल है. Q3 में हम इसी ऊपर वाले फॉर्मूले में 3 से इंटू कर देंगे. 3 इंटू n+1 अपॉन 4th आइटम का जो साइज होगा यानी वहाँ पर जो वैल्यू होगी वो हमारी थर्ड क्वार्टाइल या अपर क्वार्टाइल कहलाएगा. डेसाइल D1 का साइज हो जाएगा. डेसाइल है तो अपॉन 10 रहेगा. n+1 अपॉन 10th आइटम. अगर हम 5 देखना चाहते हैं तो 5 इंटू में आ जाएगा. अगर हम 9 देखना चाहते हैं तो साइज ऑफ 9 इंटू n+1 अपॉन 10th आइटम आ जाएगा. परसेंटाइल है तो हम उसे P से डिनोट करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 से. फॉर्मूला वही रह रहा है. आप देख रहे हैं जैसा मैं आपसे कह रहा था कि फॉर्मूले वही रहते हैं. अगर परसेंटाइल है तो डिवाइड में 4 आएगा, डेसाइल है तो डिवाइड में 10 आएगा. एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, शायद कुछ गड़बड़ बोल गया. Q1 क्वार्टाइल है तो डिवाइड में 4 होगा. डेसाइल है D है तो डिवाइड में 10 होगा और परसेंटाइल P है तो डिवाइड में 100 होगा. ऊपर n+1 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 रहेगा ही. अगर फर्स्ट है तो इंटू 1 होगा, थर्ड है तो इंटू 3 होगा, 5 है तो इंटू 5 होगा, 9 है तो इंटू 9 होगा, P99 है तो इंटू 99 होगा. जो भी वैल्यू हम लेंगे उसके अनुसार इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. लोअर एंड अपर क्वार्टाइल अनग्रुप्ड डेटा. 2 प्रकार के डेटा होते हैं, ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा. अगर अनग्रुप्ड डेटा है तो हमें क्या करना है. ऑड नंबर्स हैं, जैसे हमने मीडियन के केस में भी देखा था. ऑड नंबर के लिए अलग और इवन नंबर के लिए अलग फॉर्मूले होते हैं. तो अगर ऑड नंबर हैं तो सिंपली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन +1 अपॉन 4 कर देंगे तो लोअर क्वार्टाइल आ जाएगा. और इसी में 3 से इंटू कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन +1 अपॉन 4th आइटम इंटू 3 तो ये हमारा अपर क्वार्टाइल आ जाएगा. अगर हमारे पास इवन नंबर्स हैं तो हमें कुछ भी नहीं करना है, n/4 करना है.
जो ऑब्जर्वेशन मिलेगा वो हमारा लोअर क्वार्टाइल है, और 3 इंटू एन बाय 4 करेंगे, जो ऑब्जर्वेशन हमें मिलेगा वो हमारा अपर क्वार्टाइल यानी Q3 है। ये अनग्रुप्ड डेटा के लिए था। यहाँ ध्यान रखिएगा, इवन नंबर्स अगर हैं तो फॉर्मूला n बाय 4 रहेगा, और अगर ऑड नंबर है तो n+1 बाय 4 रहेगा। और थर्ड क्वार्टाइल निकालना है तो 3 से इंटू कर देंगे। इन पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट डिवाइड्स अ ग्रुप ऑफ डेटा इनटू 100 पार्ट्स, परसेंटाइल का ये पहला पॉइंट है। At least n% of the data lie below the nth percentile and at most 100 minus n. टोटल 100 होते हैं, अगर आपने 100 ले लिया तो अब बचेगा कितना, 100 minus n of the data lie above the nth percentile. इस n की जगह अगर आप 90 लेते हैं तो क्या होगा। एग्जाम्पल, 90th percentile indicates that at least 90% of the data lie below it and the most 10% of the data lie above it. इसे दोबारा पढ़ के समझिएगा, ध्यान से समझेंगे, बहुत सिंपल है। The median and the 50th percentile have the same value. अब एक बार हम जो हमारे पार्टीशन वैल्यू का बेस है मीडियन, उसके फॉर्मूले को दोहरा लेते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर फॉर्मूले बने हैं। जैसे मैंने अभी आपको इवन और ऑड नंबर के लिए अलग अलग फॉर्मूले बताए थे, अगर आप उसे वैसे न समझना चाहें तो हम एक ही फॉर्मूले से इस बात को समझ सकते हैं। अभी हमने आपसे यह भी जिक्र किया था कि 3 ही सीरीज़ हैं, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ जिसको फ्रीक्वेंसी एरे भी बोलते हैं, और कंटिन्यूस सीरीज़। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में हम मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर ऑड नंबर हैं तो n+1/2, जैसे 7 आइटम्स हैं तो 7+1 8, 8/2 यानी 4th आइटम हमारा मीडियन होगा। अब मान लीजिए हमारे पास इवन नंबर्स में, मान लीजिए 8 आइटम्स हैं, तो क्या होगा, मिडिल मोस्ट वैल्यू पॉइंट्स में आ जाएगी। 8+1 करेंगे हम तो हो जाएगा 9, 9/2 करेंगे तो 4.5 आएगा। तो हमें 4th और 5th इन दोनों का एवरेज लेना है। तो आप उसे इवन और ऑड की तरह से भी समझ सकते हैं, या यहाँ पर जो बी में लिखा हुआ है, इफ़ n+1/2 कम्स टू बी इन फ्रैक्शन द मीडियन वुड बी एवरेज ऑफ 2 मिडिल वैल्यूज ऑफ द सीरीज। ये वही सेम बात है, उन्हीं चीज़ों को अलग अलग ढंग से लिखा जाता है, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होए। डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसी एरे में क्या कहते हैं, हम साइज ऑफ n+1/2th आइटम लेते हैं, जहाँ पर n जो है वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। वो फ्रीक्वेंसी जिस आइटम में लाई करेगी उस आइटम को हम मीडियन कहेंगे। फिर आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, यानी जिसमें क्लास इंटरवल होता है। तो m इज़ द साइज ऑफ n/2th आइटम। जो हमारी मीडियन क्लास होगी वो कौन सी होगी, n/2th आइटम वाली। वो वैल्यू को ले लेंगे हम, और ये फॉर्मूला है हमारे पास, m = n1 n/2 CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, f माने फ्रीक्वेंसी और i माने क्लास साइज, 2 क्लास के बीच का डिफरेंस। ये फॉर्मूले आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप अनेक बार इसको कर चुके हैं। इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए, इसी फॉर्मूले के आधार पर आगे के सारे फॉर्मूले बनेंगे। अभी जिस फॉर्मूले का जिक्र हम आपसे कर रहे थे वो फॉर्मूला आपको याद है। अब हम क्लास इंटरवल ऑफ Q1 पता करने जा रहे हैं, साइज ऑफ n/4th आइटम, क्योंकि Q1 और Q3 क्या हैं, क्वार्टाइल हैं, इसलिए इसमें क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। फॉर्मूला वही रहेगा, Q1 = L1 प्लस n/2 मीडियन में होता था, यहाँ n/4 हो जाएगा, माइनस CF है अपॉन f है इंटू i है, सेम फॉर्मूला है। Q3 के लिए अपर क्वार्टाइल के लिए केवल हमको n/4 के साथ 3 का इंटू करना है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। इसलिए हमने रेफरेंस के तौर पर आपको मीडियन का फॉर्मूला अभी दोबारा रिवाइज कराए थे। देखिए वो बिल्कुल सेम फॉर्मूले हैं, केवल n/4 है Q1 में, क्योंकि इंटू 1 करेंगे तो सेम आएगा। Q3 में 3 है तो इंटू 3 करेंगे हम n/4 के साथ। फॉर्मूले और फॉर्मूले में जो
चीज़ें यूज़ की गई हैं, L1, CF, IF, इनका भी वही मीनिंग है जो हमारे मीडियन के फॉर्मूले में था। दिखाया गया है D1, D4, साइज ऑफ फर्स्ट है तो n+1/10th आइटम, साइज ऑफ फोर्थ लेना है हमको तो इंटू 4 कर देंगे उसी फॉर्मूले में, फर्स्ट वाले फॉर्मूले में इंटू 9 कर देंगे तो 9 का फॉर्मूला आ जाएगा। अगर कंटिन्यूस सीरीज़ है तो हमको क्या करना होगा, तब हम इनसे क्लास इंटरवल लोकेट करेंगे। क्लास इंटरवल ऑफ D1 कौन सा हो जाएगा, साइज ऑफ n/10th आइटम। क्लास इंटरवल D4 कौन सा हो जाएगा, उसी फॉर्मूले में 4 से इंटू करेंगे और आ जाएगा 4 × n/10th आइटम। क्लास इंटरवल ऑफ D9 कौन सा हो जाएगा, साइज ऑफ 9 × n/10th आइटम। एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कंसर्न डेसाइल इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। ये फार्मूला कब यूज़ करना है, जब आपको क्लास इंटरवल दिया हो, जैसा हमने आपको मीडियन में बता कर लाए थे वही फॉर्मूले अब यहाँ पर हैं। n/2 के स्थान पर क्वार्टाइल में n/4 आता था, डेसाइल में n/10 आएगा। अगर फर्स्ट है तो इंटू 1 है, 4 है तो इंटू 4 हो जाएगा, 9 है तो इंटू 9 हो जाएगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेम फॉर्मूला है। परसेंटाइल के बारे में आपको सारी जानकारी बता चुके हैं कि वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो वही जानकारी यहाँ पर लिखी है, एक बार आप जल्दी से पढ़ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। परसेंटाइल के फॉर्मूले दिए हुए हैं। अगर इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ हैं तो वही सिंपल फॉर्मूले हैं जो हमारे क्वार्टाइल के लिए था, मीडियन के लिए था। अगर कंटिन्यूस सीरीज़ हैं तो हम सबसे पहले क्लास इंटरवल का पता करेंगे कि कौन सी क्लास हम लेंगे। उसकी क्लास इंटरवल लेने के लिए फॉर्मूला वही है, साइज ऑफ n/100th आइटम। अगर P4 निकालना है तो 4 से इंटू करेंगे, P99 निकालना है तो 4 से इंटू करेंगे, 99 से इंटू करेंगे, और अगर P56 निकालना है तो 56 से इंटू करेंगे। अब हमारे पास वही जो मीडियन वाला फार्मूला था उसमें n/2 था, यहाँ n/100 हो जाएगा क्योंकि हम परसेंटाइल कर रहे हैं। 1 है तो इंटू 1 हो जाएगा, 4 है तो इंटू 4 हो जाएगा, 99 है तो इंटू 100 हो जाएगा, और कोई चेंजेस नहीं है। अब अगले वीडियो में हम इनके इलस्ट्रेशंस और इनके क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे इनके प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। इसके अगले पार्ट 2 में हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे।